Welcome, dear students. So, we all are doing here chapter wise important questions for your 10th board term 1 examination. So, this is the turn to do chapter number 6, that is triangles. Till now, we have finished chapter 1, 2, and 3. All three videos are given in the playlist, and the link I'll provide you in description box. आप वहां से तीनों videos देखकर practice कर सकते हैं. So, now we will do chapter 6 here. So, again, there are important questions. So, we'll discuss one by one. So let's read question number 1. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then y plus z is how much? So there are two triangles which are similar to each other. So you have to calculate value of y. Here is the distance y and here is z. आपको दोनों को add करना है. Then you have to take the correct option. So for this, I know that whenever two triangles are similar, so their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio. So always remember, जब भी triangles similar होते हैं तो corresponding sides का ratio same होता है, जबकि congruency में sides equal होती हैं, corresponding sides equal. ठीक है. So triangle में क्या होता है, जब similarity हो जाए तो sides का ratio बराबर होता है. तो कैसे लिखते हैं हम लोग? Since triangle ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, सो दिस इम्प्लाइज बाय CPST हम लोग लिखते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ये रेशो कैसे बैठता है, देखो AB के सामने PQ साइड गिवन है तो AB बाई PQ विल बी इक्वल टू BC बाई QR, सो BC बाई QR. देन उसके बाद फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को लिया जाता है AC एंड PR, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स है. Okay, now we'll put values one by one. So AB is how much? AB is Z. So Z upon PQ is 3, BC is 8, QR is 6, AC is 4 root 3 and PR is Y. So with the help of these three fractions, I need to calculate X and Y. So I'll equate only those fractions जिससे हमारा आंसर निकल सकता है. तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं ताकि Z आ जाए, फिर इन दोनों को लेंगे to calculate Y. So what I will do, Z upon 3 equals to 8 upon 6. So 3 2s are 6, 2 4s are 8. So Z equals to 4. Okay, now equate these two last fractions to get value of Y. So 8 upon 6 equals to 4 root 3 by Y. So I can cut it. 4 2s are, 2 3s are. So Y equals to 3 root 3. So I got both values. Z भी मिल चुका है, Y भी मिल चुका है. They were asking Y plus Z, तो दोनों को ऐड कर दीजिए. So y plus z equals to 3 root 3 plus 4. So what should I take? 3 root 3 plus 4. Okay, now second question. It is based on BPT, Basic Proportionality Theorem. That is second exercise of this chapter. In given figure, DE parallel BC. If AD by DB is given as 2 by 3 and complete AC is 18, so you need to find AE. So if you remember, इन बीबीटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल में इफ वी आर ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, तो हमने इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है. तो हमेशा जो रेशियो होता है एडजेसेंट साइड्स का, जो ये बराबर में है, वो बराबर कट होता है. तो यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू AE बाई EC होता है. इसे हम कॉरोलरीज को भी और आगे लिख सकते हैं, यानी इससे और रिजल्ट्स भी बन सकते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में. लाइक हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AD by complete side AB will be equal to this AE by complete AC. So the main aim to say is this कि आपको जो रेशियो इस साइड लेना है वही आप सीक्वेंस उस साइड में फॉलो करेंगे. यानी जैसे आपने AD अपॉन DB लिया तो राइट में AE बाई EC लिखा जाएगा. इफ यू आर टेकिंग AD अपॉन कंप्लीट AB तो यहाँ पर AE अपॉन कंप्लीट AC आप लोग लेंगे. यू कैन टेक इन रिवर्स ऑर्डर, BD अपॉन BA इट विल बी CE अपॉन CA. सो दिस मैनर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. दिस इज थ्योरम BPT. सो अब इसको यूज कैसे करना है, क्वेश्चन में बोला गया है DE इज पैरेलल टू BC. सो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. AD अपॉन DB आपको कितना गिवन है, लिख लेते हैं. AD अपॉन DB इक्वल्स टू 2 by 3 एंड दिस कंप्लीट AC इज 18. आपसे पूछ रहे हैं AE की वैल्यू. सो कैन आई मार्क इट एज X. हमने AE को X माना तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा बेटे, 18 minus X. So I'll write 18 minus X. Now by BPT
basic proportionality theorem, I know this is parallel to this, so ratio will be equal. So AD upon DB equals to AE by EC. Now let's put value. AD upon DB already 2 upon 3 here. What about AE? AE is X and it is 18 minus X. So let's put its value. It's already done. Now let's multiply it. So 3x is equals to 36 minus 2x. So this implies 5x is equal to 36. This implies x is equal to 7.2 centimeters. So this is the answer, 7.2 centimeter. Okay. Now third question is question number 3. Triangle ABC is similar to triangle DEF if AB is 4, BC is 3.5, AC is 2.5 and DF is this much. Then perimeter of DEF is this. So for this you need to remember a result. आप लोगों ने पढ़ी है बेटे एरिया रेशियो थ्योरम. उसमें रिजल्ट होता है कि the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding sides. यानी if you have two triangle ABC and PQR and both are similar to each other, तो अगर उनका areas का relation पूछा जाए तो simply area ABC upon area PQR will be equal to AB by PQ whole square is equal to BC by QR whole square equals to AC by PR whole square. यानी आप जब भी एरिया रेशियो निकालते हैं तो कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो स्क्वायर कर दीजिए, आपको एरिया रेशियो मिल जाएगा. सिमिलरली आपको एग्जाम के लिए पेरीमीटर रेशियो भी याद रखना है. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो पेरीमीटर रेशियो का वैसे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस टाइप का है नहीं, बट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये. एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, जब भी एरिया रेशियो पूछा जाए तो आप साइड का स्क्वायर करेंगे. एंड बट वेन एवर दे आस्क यू पेरीमीटर रेशियो तो आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली पेरीमीटर P4 पेरीमीटर बेटा आई एम राइटिंग, चलो इसे थोड़ा और लिख लेते हैं. पेरीमीटर ABC upon perimeter triangle PQR will be directly equal to ratio of their corresponding sides. यहाँ स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको तो जब भी पेरीमीटर रेशियो पूछा जाए याद रखिएगा ओनली साइड रेशियो लेना है, स्क्वायर नहीं लगाना है. ठीक है. तो अब आप खुद ऑब्जर्व करो, पेरीमीटर को डायरेक्ट अगर हम साइड के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं तो पेरीमीटर अगर एग्जाम में आ जाए और एरिया पूछा जाए तो एरिया के लिए सीधा स्क्वायर कर देना आप. ठीक है. So here triangle ABC is similar to DEF. So perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF is equal to ratio of any two corresponding sides. तो इसमें ये देखो आप ABC की तो तीनों साइड गिवन है, बट DEF से आपको सिर्फ DF गिवन है. तो DF के corresponding BC AC बैठ रहा है, तो AC बाई DF आप ले लीजिए, बिकॉज DF इज नोन टू अस. इसमें सिर्फ DF दी गई है. पैरीमीटर एबीसी का गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है. देखो यहाँ पर तीनों साइड गिवन है, पैरीमीटर गिवन नहीं है. तो आप जानते हैं पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है. तो पैरीमीटर निकाल देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करने के बाद. सो 4 प्लस डी एफ पैरीमीटर हमें ऑलरेडी चाहिए. सो पैरीमीटर ट्राइंगल डी ई एफ AC is 2.5 and DF is 7.5. Decimal to decimal will be removed. So इसे कट कर लेते हैं. 25 3s are 75. Add them. It will be 10. Perimeter of triangle DEF is equal to 1 by 3. So cross multiplication से आपको मिलेगा perimeter DEF is equal to 30. 10 3s are 30 centimeter. So I hope you understood this question also कि जिसमें आपको perimeter पूछ लिया जाए तो simply आपको side ratio लेना है, square नहीं करना है. एरिया आएगा एग्जाम में तो स्क्वायर करना है. ठीक है. So next question now. Question number 4 now. In triangle PQR and triangle MNS, PQ by NS equals to QR by MS equals to PR by MN. Then we have to
राइट अ रिलेशन, आपको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना है कि ये रेशियो तीनों बराबर अगर हैं तो किस सीक्वेंस के तहत बराबर है। सो आप जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बराबर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऐसे बैठता है। तो ध्यान से देखिए पी क्यू बाई एन एस है तो पी क्यू के सामने एन एस होना चाहिए। इफ वी सी इन दिस ट्राइंगल, इसमें पी क्यू के सामने एम एन आ रहा है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पी क्यू के सामने एस एम आ रहा है जबकि पी क्यू के सामने एन एस आना चाहिए। पी क्यू, क्यू और पी, यानी पी क्यू यहाँ है लास्ट में, तो लास्ट में एन एम आ रहा है। सो एन एम इज ऑल्सो रॉन्ग। तो लास्ट ओनली फोर्थ ऑप्शन बचता है, यही करेक्ट होगा। तो इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पी क्यू के सामने एन एस है, सो पी क्यू फर्स्ट और लास्ट पोजिशन पर है, पी क्यू के सामने एन एस है। क्यू आर के सामने एम एस है, क्यू आर एम एस एम एम एस बोथ आर इक्वल, पी आर एम एन, पी आर एम एन। ओके, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस जिसमें ये तीनों वेरीफाई हो रहे हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, एंगल BAC इज 90, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो आपको इन चारों में से एक रिजल्ट सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं BD कहाँ है। BD इज हेयर, CD इज हेयर, BC इज हेयर कंप्लीट, और ABAC चाहिए तो ABAC यहाँ यहाँ है। BD CD का जिक्र है, AD का जिक्र है तो AD यहाँ है। तो यानी इन दोनों ट्राइंगल के सभी पार्ट ऑलमोस्ट यूज किए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल को ही सिमिलर शो कर देते हैं ताकि हमारा सही सीक्वेंस बैठ जाए। तो जब भी आपको चार साइड एक साथ दिखे ना, देखो चार ही तो है, एक दो और ये दो बार है BC BC, तो इसलिए से चार काउंट करेंगे आप। तो चार कब आती है, जब वो अपॉन में हो, अपॉन में होंगे तो रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा ही बैठेगा। तो रेशियो बराबर लाने के लिए सिमिलैरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको सिमिलर शो करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को। सो सी हाउ टू शो इट सिमिलर, इन दोनों पार्ट को सिमिलर कैसे शो कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो दोनों में 90-90 DD है तो ये इक्वल हो गया एक एंगल, और डबल ए लाने के लिए एक और प्रॉपर्टी में एक और एंगल यहाँ लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, वी कैन सपोज इट एज एक्स, हमने इसे एक्स मान लिया, ये 90 है। तो ये कितना बैठेगा बेटे, जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तुम, एक्स प्लस 90 प्लस ये वाला इसको वाई कह लेते हैं, इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बैठेगा। तो ये वाला बैठेगा 90 माइनस एक्स। और आप जानते हैं कंप्लीट 90 है तो 90 में से ये वाला हटाएंगे तो पीछे वाला आ जाएगा। सो 90 माइनस 90 प्लस एक्स, तो ये वाला बचेगा हमारा x। तो यानी अगर हम इस तरीके से चलेंगे, इसको x मानकर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 माइनस एक्स आएगा, फिर ये पूरा 90 है तो 90 में से ये राइट पार्ट हटाएंगे तो ये x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर बैठेंगे, तो हम डबल ए इजीली लगा सकते हैं। तो बस सीक्वेंस ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल, फर्स्ट को तो मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख लिया है। अब इसका सीक्वेंस ध्यान से लिखना है। देखो ABD का जो A एंगल है वो x है, तो इस ट्राइंगल में x यहाँ C पर बैठ रहा है तो x A के सामने C अल्फाबेट आएगा। B के सामने बेटे ये वाला एंगल B आएगा इसके इक्वल, क्योंकि ये भी 90 माइनस एक्स आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इस B के सामने उसका A आना चाहिए। एंड DD दोनों में 90 था तो CAD यहाँ पर। तो बाई डबल ए एंगल प्रॉपर्टी, डबल ए सिमिलैरिटी रूल बेसिकली। तो अब जब सीक्वेंस हमारा लिखा जा चुका है तो हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर लिखेंगे बाय CPST। सो आई कैन राइट AB अपॉन AC इक्वल BD अपॉन AD, AD अपॉन CD। सी हमारा बस यहाँ AD स्क्वायर बन रहा है, यानी इन दोनों में से एक रिजल्ट एज आंसर आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस करने पर मिलेगा AD स्क्वायर BD dot CD. So AD square BD dot CD is the third result and this is correct option. Now come to sixth one. In the given figure is AB, if AB parallel CD, यानी ये ट्रेपेजियम है तो x कितना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये थ्योरम की तरह काम करेगा। आपने 6.2 में ये प्रूव करके दिखाया है, किसी भी ट्रेपेजियम में ये जो डायगोनल होती है इनका रेशियो बराबर कट होता है। तो इसको आप एज अ थ्योरम अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं जिसमें ट्रेपेजियम की डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन एनी ट्रेपेजियम डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट इन दिस मैनर, OA बाई OB इक्वल्स टू OC बाई OD। ये रेशियो याद रखिएगा, OA बाई OB इक्वल्स टू OC बाई OD। इस थ्योरम से आपके डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेपेजियम बेस्ड हो जाएंगे इजीली। तो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। OA इज हाउ मच, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1
x+3 अपॉन x-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इजीली कर सकते हैं, देन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्व करने पर वी आर डूइंग इट डायरेक्टली क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो आप लोग इसे फटाफट से कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे बेटे तो आपके जो ऑप्शन आएंगे उसमें से आपको 7 चूज करना है क्योंकि 7 इज गिवन हेयर। तो आप इसे आगे खुद से ट्राई करिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कीजिएगा, स्प्लिट करिएगा, तो जो 7 ऑप्शन होगा उसको आप मार्क करके रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th one, a vertical stick 12 meter long cast a shadow 8 meter long. At the same time, tower cast a shadow 40 meter long. Then the height of tower is. Whenever you get such question in exam जिसमें आपको दो ऑब्जेक्ट का जिक्र हो, तो यानी एक ऑब्जेक्ट की शेडो हाइट गिवन हो, दूसरे की एक चीज अननोन छोड़ दी जाए, तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटे, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। ऑब्जेक्ट 1 अपॉन शेडो 1, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो उसके नीचे इक्वालिटी में रखिए आप ऑब्जेक्ट 2 अपॉन शेडो 2। ये फॉर्मूला आता कहाँ है, सिमिलरिटी से आता है जो हम अच्छे से समझ चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं तो बेहतर है हमें कुछ ट्रिक्स माइंड में रखकर चलनी है। तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट 1 बाई शेडो 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 बाई शेडो 2 याद रख के जाइए। तो इस हिसाब से देख लीजिए, स्टिक की हाइट है 12 मीटर, तो ऑब्जेक्ट 1 तो 12 मीटर की है, उसकी शेडो है 8, सो 12 बाई 8। अनदर टावर की शेडो दे रखी है 40, तो शेडो नीचे आती है। हाइट ऑफ टावर पूछ रहे हैं, उसे हमने x मान लिया, सो 8 5 जा 40, 12 5 जा 60, तो हाइट ऑफ टावर इज 60 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ABC एंड BD दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया है ABC AB एंड C, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका हमने D मिड पॉइंट ले लिया है और एक ट्राइंगल BDE बनाया है, तो BD के लिए बेस तो यही रहेगा, तो E पॉइंट यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ। इट इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपसे दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, एरिया रेशियो पूछ रहे हैं। आप जानते हैं दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो, सिमिलर तो ये बिल्कुल है, दोनों इक्विलेटरल हैं तो ट्रिपल ए से हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका एरिया रेशियो क्या होगा, यानी एरिया ABC बाई एरिया BDE कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड चलो हम BC और BD ले लेते हैं। ABC का BC कोरस्पॉन्डिंग साइड आ रहा है, इसका BD आ रहा है। देखो BC के सामने हम लोग ले सकते हैं, इसमें अगर हम ध्यान से देखें BC एंड DE। अब देखो, नाउ सिंस इट इज इक्वेटरल ट्राइंगल तो हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। DE को हम क्या लिख सकते हैं, DE को BD भी कह सकते हैं, सो BD रिप्लेस किया होल स्क्वायर। नाउ सी BC जो है डबल है BD का बिकॉज D वाज द मिड पॉइंट, तो BC को हम डबल BD लिख सकते हैं एंड BD होल स्क्वायर। 2 से 2 कट, सो 4:1, so answer is 4:1। let's do quickly 9th question। the area of two similar triangle are 25 and 121। आपसे साइड का रेशियो पूछ रहा है, this is also one of the form of questions। so in question number 9 the area of two similar triangle are given, ratio of their sides पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया फर्स्ट ट्राइंगल, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे ABC कह दीजिए चलिए, और दूसरे को आप PQR कह दीजिए क्योंकि एरिया मेंशन नहीं है। आप जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, AB बाई PQ मान लो। तो एरिया दे रखा है आपको 25 बाई 121, साइड का रेशियो पूछ रहा है, सो AB बाई PQ का होल स्क्वायर। देखो जब भी साइड आए एग्जाम में, साइड का रेशियो पूछा जाए, एरिया दे रखा हो तो सीधा स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑन अनदर साइड AB बाई PQ, तो आंसर हो जाएगा 5 बाई, ये 5 होता है और ये 121 होता है 11 का स्क्वायर, 5 बाई 11। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपसे एरिया रेशियो देकर साइड पूछी जाए तो स्क्वायर रूट ले लीजिए क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन में दोनों नंबर्स हैं। और इन केस इसका उल्टा पूछा जाए, साइड का रेशियो देकर एरिया पूछा जाए, एरिया रेशियो, तो स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। तो ट्राइंगल ABC में AD बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस वन, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और आप कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने A बाइसेक्ट कर लिया है, तो जो उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है उनका रेशियो हमेशा बराबर होता है इसके अपोजिट पार्ट्स के, यानी AB, इसको हम D नेम दे रहे हैं, सो ये हमेशा ऐसे बराबर लिखा जाएगा, AB अपॉन AC
equals to BD by DC. Always remember this theorem, it is very important. बहुत सारे एमसीक्यूज पर बेस्ड होते हैं कि जब भी आपको किसी एंगल का बाइसेक्टर दिया जा रहा है तो आप उसकी एडजेसेंट साइड का रेशियो बराबर लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट पार्ट्स के रेशियो के इक्वल। तो देखो यहाँ भी ध्यान से, एंगल ए हैज बीन बाइसेक्टेड तो रेशियो कैसा इक्वल लिखेंगे हम लोग यहाँ इसे कर लेते हैं। सो दिस अपॉन दिस, सो एक्स अपॉन x माइनस टू इक्वल रखा जाएगा x प्लस टू अपॉन x माइनस वन के क्रॉस कर दो, सो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस x minus 2 dot x plus 2. I'm just multiplying it. Minus 2x minus 4. This will be cancelled. This is cancelled. Minus x is equal to minus 4. X is equal to 4 answer. So I hope you understood angle bisector theorem also. तो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बाबा प्रैक्टिस कीजिए. They will help you a lot in exam. आपको क्वेश्चंस इससे ज़रूर मिलेंगे. The only need is to practice and keep it in your memory. तो इसे रिवाइज करिएगा अच्छे से, अपने पास नोट रखिए सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं या फिर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. So all the best for your exam. Thank you so much and stay in टच विद अस ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू.